Good morning, students. Let's continue the chapter 3 in the earliest cities, and the topic is new crafts in the city. In the new crafts in the city, the topic is faience. What is faience? Unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. वो अनलाइक स्टोन्स होते हैं और शेल होते हैं दैट आर फॉर्म नेचुरली, वो मिलते हैं आपको नेचुरली फाउंड, दे आर फाउंड नेचुरली. एंड फैंस इज़ अ मटेरियल, फैंस एक मटेरियल है दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, उसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है दैट स्टोन, जो नेचुरली स्टोन्स और शेल आपको मिलते हैं उसका यूज़ करके. अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड, गम वॉज यूज टू शेप सैंड, गम का यूज़ किया जाता है शेप करने के लिए सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट. आप सैंड को शेप करने के लिए या पाउडर क्वार्ट्ज को शेप देने के लिए आप गम का यूज़ करते हैं जिससे वो एक ऑब्जेक्ट का शेप दिया जा सके. द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस. उसके बाद उसमें एक बहुत पतली सी शाइनी ग्लासी सरफेस का कलर किया जाता है और जिससे वो शाइन होने लगता है. द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज करके उस पर एक पतली सी परत, यू कैन से पतला सा ऑब्जेक्ट कलर किया जाता है और रिजल्ट में आता है कि वो बहुत शाइनी और उसका ग्लासी सरफेस हो जाता है. द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर, जो कलर्स होते हैं जो ग्लेज के जो आप कलर करते हो वो यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन कलर्स होते हैं. फैंस वॉज यूज, फैंस का हम यूज़ करते हैं, फैंस का यूज़ बीड्स के लिए, बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स बनाने के लिए, छोटे मोटे बर्तन बनाने के लिए, बीड्स के लिए, चूड़ियाँ, बैंगल्स या ईयरिंग्स बनाने के लिए फैंस का मटेरियल जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसका यूज़ किया जाता है. मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट. जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलिस्ट पर्सन. अ स्पेशलिस्ट, हु इज स्पेशलिस्ट देन? अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन who is trained to do only one kind of work. A specialist is a person, a specialist is a person who is trained to do only one kind of work. Specialists are those person who is trained, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वो only one kind of work बिल्कुल स्पेशल मतलब केयर से कर पाएँ. They get the training for their work. Like for example, cutting stone or polishing beads, for cutting stone, polishing beads or carving seals. Look at the illustration, page number 28, and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. You can see seal, for example, seal, beads. Really, this must have been the work of an expert person. उसने इतने अच्छे से carefully that work they completed that it's a work of expert craft person. It's an example of expert craft person. That time in our history there are also a specialist person who get the training to do only one kind of work, and when the work is completed it's shown like a very beautiful, and you can say it's an expert specialist. They are a expert specialist, an expert specialist, a craft person. Not everybody could have been a specialist. हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता. Not everybody. We do not know whether
We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. The works, जितने भी वर्क्स हुए हैं, वी डू नॉट नो, हमें ये नहीं पता कि हु आर द स्पेशलिस्ट, मैन और वुमेन. Perhaps some women and men may have been specialists. Perhaps some women and men have been specialists, may have been specialists, मीन्स कि उनमें से कोई ना कोई वुमेन्स एंड मेंस दोनों ही स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ वुमेन्स एंड सम मेंस. Then our next topic, in search of raw materials. In search of raw materials. For making crafts, raw materials is very important part. In search of raw material. Next topic, in search of raw materials for making crafts, for making beads and for making seals, the small vessels, we need some raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally. Raw materials are the substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or next either found naturally or produced by farmers or herders. Raw materials, either they are found naturally, either they are found by God gifted, या वो गॉड गिफ्टेड है, या नेचुरली या एनवायरनमेंट से हमें मिल जाता है, या यू कैन से इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या फार्मर और हर्डर्स प्रोड्यूस्ड दीज रॉ मटेरियल्स, या फार्मर्स और हर्डर्स प्रोड्यूस करेंगे रॉ मटेरियल्स, या वी गेट द रॉ मटेरियल्स naturally, for example wood or ores of metals, and these are then processed to produce finished goods. When we use raw materials, these raw materials, ये रॉ मटेरियल्स हमें हेल्प करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं कि प्रोड्यूस किया जाए एक फिनिश्ड गुड्स को. And for example, let's take an example, cotton produced by farmers. Cotton produced by farmers, it is a raw material. Cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make clothes. After that, when we get raw material, we process the raw material to make a finished good. And this is an example for making a cloth. It processed to making the cloth. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. While many raw materials available locally, while you can say many or some raw materials available locally, कुछ raw materials हमें available हो जाते थे locally, that in Harappa cities, but available Harappa used were locally available, but many items like copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. कुछ रॉ मटेरियल्स हमें लोकली हड़प्पा सिटीज़ के पास लोकली अवेलेबल हो जाते थे, बट many raw materials are not available in this city, so we have to move it for
we have to move from distant places, we have to move, हमें दूर दूर देशों में जाना पड़ता था रॉ मटेरियल्स के लिए, लाइक कुछ रॉ मटेरियल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन और टिन. The Harappans probably got copper from present day Rajasthan. Most important thing, note down. Most important thing, the Harappas probably got copper from present day Rajasthan. They get copper from Rajasthan and they get copper from Oman in West Asia and from Rajasthan. They get copper from two places, Oman, which is in West Asia, and Rajasthan, which is in India at northwest side, desert area. They get copper as a raw material from Rajasthan and Oman. Next, they get tin from Afghanistan. They get tin from Afghanistan. And tin which was mixed with copper, to produce bronze, may have been brought from Afghanistan, and Iran. They get copper from Oman, which is in West Asia, Rajasthan in India and northwest side, and from Iran and Afghanistan they get tin as a raw material, and tin is mixed with copper to produce bronze. Gold could have come all the way from present day Karnataka. Where is Karnataka in India? Find by yourself. Where is Karnataka? And precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. Precious stone. They get precious stones from Gujarat, Iran and Afghanistan. You can say Gujarat west side, Karnataka southwest side, Gujarat, Iran and Afghanistan. They get precious stones from there. How were goods carried from one place to another? Look at the illustration. One shows a toy and the other is a seal. One shows a small wooden toy and other is a seal. Can you suggest what the modes of transport used by the Harappans were? Can you suggest what the modes of transport used by the Harappas were? And did you come across illustrations of wheeled vehicles in earlier lessons? Suggest some modes of transport, and let's start a new topic. Food for people in the cities. Food for people in the cities.
food for people in the cities. While many people live in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. Many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. कुछ सिटीज़ में रहते थे पर्सन्स, कुछ गांव में पर्सन्स रहते थे. दे ग्रू सम क्रॉप्स एंड वो जानवरों को भी पालते थे. दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी. वो जो किसान और जो हर्डर्स थे, हर्डर मीन्स चरवाहा, जो अपने पशुओं को पालते हैं, लेके जाते हैं. शहरों में रहने वाले जो सिटीज़ में रहते थे, जो रूलर्स थे, जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, रूलर्स क्राफ्ट पर्सन्स एंड स्क्राइब्स मीन्स जो राइट डाउन करते थे, दे नो हाउ टू राइट द थिंग्स. यू कैन से अ राइटर. वी नो वो उनको सप्लाई करते थे फूड्स. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat. हमें पता चला है कुछ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमें मिले हैं कि हड़प्पा कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो करते थे. That wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. वो ये सारी चीज़ें उगाते थे, लाइक वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, शीशम, लाइनसाइड एंड मस्टर्ड. अ न्यू टूल. बार्ले मीन्स यू कैन से जॉ. और अ न्यू टूल, द प्लाउ was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. जब भी हमें कोई चीज़ फार्मिंग करनी रहती थी, क्रॉप्स को ग्रो करना रहता था, तो फर्स्ट हमें प्लाउ से उस ज़मीन को डिग करना रहता था. देन व्हाट इज़ अ प्लाउ? यू कैन सी ऑन योर बुक ऑफ पेज नंबर 30. A plow was used to dig the earth or soil for turning the soil and planting seeds. Planting seeds के लिए वो प्लाउ से खेतों में वर्क करते थे, उसे डिग करते थे, जिससे कि वो प्लांट कर सके कुछ सीड्स. Then while real plows which were probably made of wood have not survived. Toy models have been found. We have already read in chapter 2. जो भी वुड से चीज़ें बनी, वुड्स और बोन से, वो ऑलवेज डिस्ट्रॉय हो जाती थी. तो जो हड़प्पा संस्कृति में जो रियल प्लाउस थे, वो वुडन से बने थे. तो दैट विच आर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड have not survived. Toy models have been found. कुछ हमें छोटे छोटे टॉयज मॉडल्स मिले हैं. As this reason does not receive any rainfall, some form of irrigation may have been used. इस रीजन हड़प्पा सिटीज़ में इस रीजन में ज़्यादा बारिश ना होने के कारण नहीं होती थी. देन सम ऑफ द कुछ इरिगेशन फैसिलिटी, कुछ इरिगेशन में हैव बीन यूज. वो लोग कुछ इरिगेशन यूज़ करते थे, उन्होंने कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज यूज़ की होगी फॉर देयर क्रॉप्स. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड and supplied to the fields when the plants were growing. This means that water was stored
and supply to the field when plants were growing. When the plants were growing, it means plant को वाटर को स्टोर करके रखा जाता था एंड सप्लाई उसके लिए एक पाइप लगाई जाती थी जो फील्ड तक उसकी सप्लाई वाटर की पहुंचाई जाती और जिससे कि प्लांट ग्रो कर पाए. The Harappas reared cattle, वो reared करते थे, पालते थे cattle, sheep, goat and buffalo. Cattle, sheep, goat and buffalo. Cow, sheep, goat and buffalo को वो reared करते थे. Water and pastures were available around settlements. जो waters थे और जो pastures थे, जो उनके grasslands थे, वो locally ही available हो जाते थे. In Harappa cities या in Harappa coast side में easily available हो जाते थे. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. Probably means अक्सर क्या होता था कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, if in the dry summer month they take their herds of animals to greater distance in search of grass and water. जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो वह अपने हर्ड्स को लेके मूव कर जाते थे, दूर जगहों पर जाते थे जहाँ उन्हें वाटर और ग्रास लैंड अवेलेबल हो पाए. Because they also collected fruits like, जब वो दूर जाते थे इन सर्च ऑफ ग्रास और वाटर की सर्च में अपने हर्ड्स ऑफ एनिमल्स को लेके, तो वहाँ पे वो कुछ फ्रूट्स को they collect the fruits like bear and caught fish and hunted wild animals like the antelope. वो बेर को फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे लाइक बेर एंड वो फिश को कॉट फिश एंड हॉन्टेड शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप. हिरन का शिकार किया करते थे. लेट्स अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात. हड़प्पा रिएट करते थे कैटल, सम कैटल्स को रिएट करते थे काउ, बेफेलो, शिप एंड गोट. हड़प्पा सिटीज़ के आसपास या कोस्ट साइड ही उन्हें वाटर एंड ग्रासलैंड ईजली अवेलेबल हो जाता था. वेन एवर दे ड्राई समर, जब ड्राई समर होता था, देन दे मूव टू अ ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वाटर एंड पास्चर. जब ड्राई समर होता था तब वो मूव करते थे, दूर ग्रेटर डिस्टेंस पे जाते थे, वाटर को फाइंड करते एंड grasses for their animals, and they take their animals also, and they from there they collect some fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. वो फिश को पकड़ते थे, मछलियों को पकड़ लेते थे और वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे लाइक हिरन. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात. लेट्स टेक अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात.
what we get from Gujarat? Precious stones. The city of Dhaulavira was located on Khadir Bait, also spelled as Bet, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. The city of Dhaulavira was located on Khadir Bait. सिटी जो धौलावीरा सिटी थी वो खदीर बेट में लोकेटेड थी, और जो खदीर बेट था वो रन ऑफ कच्छ में था, और वहाँ पे देयर वॉज फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल थी. फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल आर अवेलेबल. There was fresh water and fertile soil. The city of Dhaulavira was located on Khadir Bait, which is in run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappa cities, which were divided into two parts. कुछ हड़प्पा सिटीज के कुछ पार्ट्स को डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, बट धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हड़प्पा सिटीज को अक्सर 2 पार्ट्स में, वहाँ पे 2 पार्ट्स में हड़प्पा सिटीज को डिवाइड किया गया था, बट जो धौलावीरा था, धौलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन. ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन्स वॉल्स विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज. जो ईच पार्ट था उसको चारों तरफ पत्थरों की ऊंची दीवारों से स्टोन वॉल्स बना दिया गया था, और एक एंट्रेंस गेटवे बनाया गया था जिससे लोग अंदर और बाहर जा सके. अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा गेटवे बनाया गया था. There was also a large open area in the settlement. यहाँ पे एक लार्ज एरिया, ओपन एरिया था सेटलमेंट के लिए, मीन वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. यहाँ पे एक लार्ज, बिल्कुल खाली, यू कैन से अ ग्राउंड टाइप, वहाँ पे पब्लिक ओकेजन, व्हेनेवर देयर इज एन ओकेजन, जब भी कोई पब्लिक सेरेमनीज होती थी तो वहाँ पे कुछ लार्ज ओपन एरिया में वो प्रोग्राम्स किए जाते. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. Other finds, कुछ चीज़ें हमें मिली हैं जिसपे कुछ letters of the Harappan script, large letters से कुछ हड़प्पा स्क्रिप्ट के बारे में कुछ लार्ज लेटर से लिखा गया है. दैट हड़प्पा स्क्रिप्ट के कुछ लार्ज लेटर्स यूज़ करके उसमें लिखा गया है. दैट वो कास्ट, उसे एक वाइट स्टोन पे बड़े बड़े, यू कैन से लार्ज लेटर्स में उसे खुदवा के लिखवाया गया है, और दैट इसको एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, और इसमें लकड़ियों का भी, वुड्स का भी यूज़ किया गया. दिस इज़ अ यूनिक फाइंड
as generally Harappan writing has been found on small objects such as seal. Really, it is the unique find. क्योंकि इट वॉज अ यूनिक फाइंड कि वाइट स्टोन पे लिख के परहैप्स लेड इन वुडन कर्व से उसको कर्व किया गया है, वुडन स्लेट से, वुडन किनारे किनारे लगा के या वुडन से उन सिंबल्स को यूज़ किया गया लिखने में. बट इज दैट ए यूनिक फाइंड हमें हड़प्पा का मिला, क्योंकि एज वी नो हड़प्पा ऑलवेज राइट ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील. हमें पता है कि हड़प्पा जब भी कुछ लिखती थी तो एक छोटे से स्मॉल स्टोन या मेटल्स पे, सील पे वो राइट डाउन करती थी अपने एडवाइसेस, अपने समथिंग यूजफुल थिंग्स. द सिटी ऑफ लोथल stood beside a tributary of the साबरमती in गुजरात. जो सिटी लोथल है वो beside किसके किनारे है? ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती. वो साबरमती के एक ट्रिब्यूटरी रिवर के किनारे है जो कि इन गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत, close to the Gulf of Khambat. Lothal stood beside a tributary of Sabarmati. Tributary of Sabarmati. Lothal एक सिटी है जो गुजरात में, जो साबरमती, लोथल एक सिटी है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती के किनारे बसा हुआ है, जो कि गुजरात में है और गुल्फ ऑफ खंबत के पास है, या यू कैन से गुल्फ ऑफ खंबत में मिलने वाली साबरमती की ट्रिब्यूटरी नदी के पास ये लोथल सिटी सिचुएटेड है. गुल्फ ऑफ खंबत में साबरमती की ये जो ट्रिब्यूटरी नदी है उसके किनारे आपका लोथल सिटी सिचुएटेड है या इन गुजरात. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजली अवेलेबल. और लोथल ऐसी जगह पे स्टोर था बिसाइड्स ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती कि हमें आसानी से वी गेट सेमी प्रीशियस स्टोन्स, हमें रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स ईजली अवेलेबल हो जाते थे. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन. ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते थे फ्रॉम स्टोन, शेल एंड मेटल से. स्टोन, शेल एंड मेटल. And there was also a storehouse in the city. यहाँ पे स्टोर हाउस भी, इस सिटी में स्टोर हाउस भी रखा गया था. स्टोर हाउस इज ऑल्सो देयर इन द सिटी. एंड मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस. यहाँ पे हमें बहुत सारे सील्स and sealing. The sealing is the impression of seals on clay. That's a sealing. Were found in storehouses. A building that was found here was probably a workshop for making beads. जो बिल्डिंग हमें वहाँ पे मिली है वहाँ पे यू कैन से प्रॉब्ली वर्कशॉप है, वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन एंड हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन
फाउंड हियर। हमें वहाँ पे एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पे हम वी कैन गेस दैट कि वहाँ पे ये चीज़ें बनती थी। लाइक हमें क्या क्या मिला है, वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, pieces of stones and half made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here। हमें वहाँ पे कुछ वर्कशॉप बीड्स को बनाने के कुछ वर्कशॉप मिले, पीसेस ऑफ स्टोन्स मिला है, टूल्स मिला है एंड हाफ मेड बीड्स भी मिले हैं एंड फिनिशिंग बीड हैव ऑल बीन फाउंड हियर। और जितने भी यहाँ पे फिनिशिंग बीड जो पूरे बना दिए गए हैं, अधिकतर सब एक पूरे बीड्स का पैटर्न वहाँ पे मिला है। Seals and sealing. What is seals and sealing? Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another। आपने सील देखा होगा कि सील एक पैकेट पे लगा दिया जाता था रेड कलर का, अभी भी आप पोस्ट ऑफिस में यू कैन सी दैट। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प bags or packets containing goods that were sent from one place to another। After a bag was closed or tied, after a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it। जब बैग को क्लोज कर दिया जाता है तो बैग को क्लोज करने के बाद द वेट क्ले जो गीला क्ले है वॉज अप्लाइड ऑन द नॉब, उसके क्लोजिंग पार्ट पर वो वेट क्ले लगा दिया जाता है और सील को लेके वहाँ पे जोर से प्रेस कर दिया जाता है। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज, जो इम्प्रेशन छप जाता है सील का उस क्ले पे, दैट नोन एज सीलिंग। फर्स्ट सील को हम यूज़ करते हैं बैग्स पे, पैकेट्स पे जिसमें गुड्स कंटेन होता है और सेंड करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इफ बैग वॉज क्लोज, फर्स्ट बैग को क्लोज करें, टाइट कर दें, अ लेयर ऑफ क्ले उसके किनारे, उसके बैग पे जहाँ आपने पेस्ट किया है वहाँ पे आप लेयर क्ले, वेट क्ले का अप्लाई करके सील को प्रेस कर दें एंड दिस इम्प्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, one could be sure that the goods had arrived safely। अगर सीलिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, सीलिंग बीच से ब्रेक नहीं हुई है, तो one person could be sure, हम सब श्योर हो जाते थे कि गुड्स अराइव हुआ है सेफली। सील्स आर यूज इवन टुडे ऑल्सो। यस, सील्स आर आपने मूवीज़ में भी देखा है, सील्स आर यूज फॉर टुडे ऑल्सो। रेड कलर का रहता है, दैट सील्स आर प्रेस्ड। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, द मिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ द हड़प्पा सिटी। मिस्ट्री मीन्स रहस्य, यू कैन से कि अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि हड़प्पा सिटी कैसे एंड हुई, हड़प्पा का कैसे एंड हुआ। अर्लियर सिटीज़ में जो फर्स्ट हड़प्पा थी 150 ईयर्स बैक साइड, यू कैन से जो मिली थी हमें, कैसे इसका एंड हुआ। 150 ईयर्स बैक जब रेलवे लाइन्स बनाई जा रही थी, दैट इट्स अ मिस्ट्री। लेट्स start our next topic, the mystery of the end। Let's start। Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change। 39 years पहले हमने देखा कि मतलब we found beginning of changes start हुए थे।
पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ दी सिटीज। पीपल ने स्टॉप कर दिया था कुछ सिटीज में रहना। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ दी सिटीज। राइटिंग, seals, weights were no longer used. Writings, seals and weights were no longer used. अब इनका यूज करना लोगों ने बंद कर दिया था। Raw materials brought from long distances became rare. जो रॉ मटेरियल्स हम दूसरे जगह से एक्सपोर्ट करते थे वो अब बिल्कुल रेयर हो गया था, बहुत कम हो गया था रॉ मटेरियल्स लाना। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets. हमने मोहनजोदड़ो में देखा सड़कों पर कचड़ों के मतलब पिल अप ऑन द स्ट्रीट, जो गार्बेज था कचड़ों का भंडार बनता जा रहा था। यू कैन से ढेर कचड़ों, बिल्कुल कचड़े फैलते जा रहे थे गार्बेजेस स्ट्रीट पर। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन, ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक हो चुका था। द न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। और सड़कों पर भी घर बनाया जाने लगा था और ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन हो गया और न्यू लेस इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स हाउसेस वर बिल्ट, लेस इम्प्रेसिव हाउस बनाए जा रहे थे। इवन ओवर दी स्ट्रीट्स पे भी वो लोग हाउसेस बना रहे थे, स्ट्रीट्स पे। वाई डिड ऑल दिस हैपन? ये सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर बिकॉज इट इज़ अ मिस्ट्री। वी आर नॉट श्योर बिकॉज इट इज़ अ मिस्ट्री। Some scholars suggest that the river dried up. कुछ scholars ने suggest किया, सब एक suggestion कर रहे थे, they are guessing that the rivers were dried up. Rivers dry हो गए होंगे। अब other scholars suggest that there was deforestation. पहले scholar ने suggest किया कि जो रिवर है वो सूख गया होगा, ठीक है, रिवर ड्राइड अप। अदर स्कॉलर्स सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, मीन्स प्लांट्स को लगातार कट किया जा रहा होगा, प्लांट्स की कटिंग। एंड दिस कुड हैव बीन हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। Fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. This could suggestion अगर deforestation हुआ होगा because fuel was required. Fuels required होते थे bricks को बेक करने के लिए, हम लकड़ियों का यूज़ किया करते थे। And for smelting copper ores को भी पिघलाने के लिए we used wood. So some scholars are suggesting that there was a deforestation, and beside grazing by large herds of cattle, इसके अलावा कुछ रीजंस दिए स्कॉलर्स ने, जो लार्ज हर्ड्स थे, जो रेयर्ड एनिमल्स थे, जो वो कैटल, शेप, गोट पालते थे, उन्होंने इतनी ग्रेजिंग की कि उन्होंने दे डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर, मीन्स मे हैव डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर। क्या पता उन्होंने ग्रीन कवर को डिस्ट्रॉय कर दिया, कैटल्स ने, गोट ने, शिप ने। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। बट नन ऑफ दीज रीजन, इनमें से कोई रीज़न ऐसा नहीं मिल रहा जो एक्सप्लेन करे कि इस सिटी का मतलब एक्सप्लेन दी
इस सिटी के एंड को एक्सप्लेन करना। we are only guessing the things, and flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. जो फ्लडिंग था, जो बाढ़ आई या रिवर ड्राई हो गए, वो हड़प्पा की कुछ ही सिटीज़ में ऐसा था। इस इफेक्ट, उसका इफेक्ट कुछ ही एरिया में था। It appears as if the rulers lost control. अगर rulers lost, it appears that if the ruler lost control, in any case the effects of the change are quite clear. Means हमें ऐसा लगता है कि रूलर्स ने अपना कंट्रोल उस सिटी पे लॉस्ट कर दिया था, उससे वो सिटी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। इन एनी केस, अनदर रीज़न, इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। जो इफेक्ट्स हुए, जो चेंजेस आए, वो थोड़े मतलब क्वाइट क्लियर है, लिटिल बिट क्लियर यू कैन से। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो साइट्स है, जो सिंध में साइट्स थी और जो वेस्ट ऑफ पंजाब जो है, वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। मीन जो साइट्स थी, जो सिंध और वेस्ट पंजाब में, जो पाकिस्तान में, वो एमेंडोनेंट, मीन्स कि उन्हें भी बिल्कुल उजाड़ दिया गया था। वो जो वहाँ पे जो बस्तियाँ थी, जो मैनी पीपल वहाँ पे जो लोग रहते थे, वो भी बिल्कुल एंड हो चुके थे। वहाँ पे भी घरों को अमेंडमेंट कर दिया गया था, उजाड़ दिया गया था। While many peoples moved into न्यूयॉर्क, कई पीपल्स दूसरी नई जगहों पे चले गए थे। स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट, कुछ पीपल्स ईस्ट और कुछ साउथ में जाकर बस गए। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट, न्यू सिटीज का इमर्ज मीन्स होता है न्यू सेटलमेंट स्टार्ट हुआ 14 years later। 14 years later न्यू सिटीज की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। You will read about them in chapter 5 and in chapter 8। आप chapter 5 और chapter 8 में उन न्यू सिटीज के बारे में you can read। Like elsewhere, find Egypt in your atlas, Most of Egypt is a dry, we know most of the Egypt is a dry desert except of the lands along the river Nile। रिवर नाइल के किनारे जो लैंड्स है, वहाँ फर्टिलिटी है ओनली, और सब पूरा डेजर्ट एरिया है इजिप्ट, अराउंड 5,000 years ago kings ruled over Egypt। वहाँ पे भी राजाओं का शासन था इजिप्ट पे। These kings sent armies to distant land to get, वो किंग्स जो थे वो अपनी आर्मीज, अपने सैनिकों को डिस्टेंट दूसरी जगह लैंड पे भेजते थे, वहाँ से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए। They also built huge tombs, वो huge tombs known as pyramid, वो पिरामिड्स भी बनाते थे। पिरामिड्स में जिसकी भी डेथ हो जाती थी तो वो टॉम्स प्रिपेयर करते थे, टॉम्स पिरामिड की तरह वो टॉम्स को बनाते थे। When they died, the bodies of kings were preserved and buried in this pyramid। When the king died, their bodies should preserve, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids, और उनको इस पिरामिड्स में दफना दिया जाता था।
pyramid. These carefully preserved bodies are known as mummies. ये जो प्रिजर्व की जाती थी बॉडीज को, इनको हम मम्मीज के नाम से जानते हैं. और these carefully preserved bodies are known as mummies. A large number of objects were also buried with them. लार्ज नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, उनके साथ, वो अकेले उनको नहीं दफनाया जाता था, उनके साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी उसमें बरीड किया जाता था, डाला जाता था. दीज इंक्लूडेड, उसमें कुछ इंक्लूड्स होते हैं फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स और एनिमल्स को भी उस पिरामिड्स में, उस टॉम में उनकी राजा रानियों की बॉडीज़ के साथ दफना दिया जाता था. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. कभी कभी जो उनके दास और दासी थे उनको भी उन्हीं के साथ दफना दिया जाता था. उनके सेवक और जो सेवक दास और दासियाँ थी उन्हीं के साथ उनको भी उसी में बरीड कर दिया जाता था. These are among the most elaborate burials known in world history. दुनिया में these are known as history में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा ब्यूरियल्स पे जो मनी यूज़ किए जाते थे सबसे ज़्यादा इजिप्ट में ही होता था. मिस्र में सबसे ज़्यादा यू कैन से किया जाता था. डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? क्या आपको लगता है राजा जब मर जाते थे तो उनको मरने के बाद ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी? यू थिंक दैट? सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता था इस पिरामिड्स में. एंड द चैप्टर इज एंड. लेट्स डू सम होमवर्क. पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 1. Note down your homework. Page number 34, question number 1, 2, 3 and 4. And question number 5, make a list what the Harappas ate. Make a list what the Harappas ate. Complete this homework in your copy.